Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. The feedback is that many of you are trying to improve themselves. Good, keep on. English lecture 4. The key points of my today's lecture are following: pronoun and kinds of pronoun, sentences of present tense, means you will be given 10 sentences in Urdu and you have to translate into English. Past tense complete. I will discuss four branches of past tense. Then the last English textbook reading, world class category. You will be given a paragraph and you will have to identify each word by parts of speech. Pronoun. Isme Zamir. Pronoun is the second part of speech. Noun was the first part of speech. The second part of speech is pronoun. What is meant by pronoun? Pro plus noun. Pro means in place of. In place of means ki jagah. And noun means name. In place of name. So what is the definition of pronoun then? Word used in place of noun is called pronoun. Word used in place of noun, name, is called pronoun. ऐसा लफ्ज जो नाम या इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम pronoun और उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं. For example, Ali is a good boy. In this sentence, Ali is noun because this is the name of a person. This is proper noun. And then in the next sentence, he respects his parents. So in place of Ali, he is being used. Ali की जगह he का इस्तेमाल किया जा रहा है. This is called pronoun. He offers praise 5 times a day. Again, in place of Ali, he is being used. So he is pronoun that is used in place of name, noun. In the second example, Aisha is a good girl. So in place of Aisha, she is being used. आपको पता है मेल जेंडर के लिए he का इस्तेमाल किया जाता है और फीमेल जेंडर के लिए she का इस्तेमाल किया जाता है. She helps her mother. She recites the Holy Quran. So she is also pronoun. इसी तरह there are many pronouns. For example, I, we, you, he, she, it, they, etc. I write on the board. So the question is, how many pronouns are there in this language, in English language? There are many pronouns. And why are pronouns used? इनका इस्तेमाल क्यों होता है? By the way, pronoun का इस्तेमाल होता है to avoid repetition. एक तो name की, क्योंकि नाम बार बार लेकर हम थक जाते हैं, वैसे भी हमें अच्छा महसूस नहीं होता. So to avoid repetition, हम बार बार उसकी तकरार से बचने के लिए pronoun का इस्तेमाल करते हैं. Second, to beautify language, तो हम अपनी ज़बान का उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए pronoun का इस्तेमाल करते हैं. So these are the examples of pronouns. Please you have to write down these words. I, we, you, he, she, they, it. ये भी pronouns हैं. ये pronouns हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम persons के लिए इस्तेमाल करते हैं. That's why they are also called personal pronoun. Right? I will discuss kinds of pronoun with you people. तो बेटा काइंड ऑफ प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो बेसिक फाइव हैं और मोर देन 5 भी डिस्कस की जाती हैं. डिफरेंट बुक्स पर डिफरेंट काइंड्स की लिखी हुई हैं, बट मैं बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. सो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट वैसे पर्सनल तो नहीं, इम्पर्सनल है, बट यू हैव टू लर्न. राइट, द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. और पर्सनल प्रोनाउंस वो तमाम वर्ड्स हैं जो हम पर्सन्स खास के लिए इस्तेमाल करते हैं.
Then the second kind of pronoun is reflexive pronoun. Reflexive pronoun means बिजाते खुद जिसका रिफ्लेक्शन हो आप पर, जो काम बैक रिएक्शन के साथ खुद पर ही जोर दे रहा हो. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ. So they are made from personal pronouns. इनका यूज भी आप सीखिए. They are very easy to learn. Reflexive pronoun, the second kind of pronoun, and they are made by adding self. तो उनके साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगा दिया जाता है. इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं. सेल्फ या सेल्फ्स. सेल्फ लगाते हैं विद द सिंगुलर प्रोनाउन एंड सेल्फ्स लगाते हैं विद द प्लूरल प्रोनाउंस. Then the second kind of pronoun is the demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun this, these, that, those. This की प्लूरल these है, that की प्लूरल those है. ये इसमें इशारा है, इसमें ज़मीर इशारा. दिस जो है ना या these करीब की चीज़ों के लिए, that या those दूर की चीज़ों के लिए. You can say this is अगर कोई चीज़ आपके पास है, ज़्यादा है तो these are. इसी तरह दूर हैं तो that is, are, those are. Clear? So you have to keep in mind again what are demonstrative pronouns. This, these, that, those. ये बहुत अहम है अंडरस्टैंड करने के लिए. इनका बड़ा स्पेशल यूज़ होता है, हम कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं. So please you have to learn the use of demonstrative pronoun. Then the fourth kind of pronoun is relative pronoun. To relate करता है, to relates, right, two sentences, two parts of sentences. हम with sentences भी इनकी examples देखेंगे at the end. Who, whose, whom, which, that. So these are called 5 basic relative pronouns. इनका भी बड़ा अहम यूज होता है. And you have to learn, you have to identify कि relative pronouns कौन से हैं. Then the last kind of pronoun is indefinite pronoun. So this indefinite pronouns are someone, somebody, anybody, nobody, one, none, etc. बट indefinite pronouns में होता ये है कि वर्ड यूज किया जा रहा होता है किसी के लिए, लेकिन उसका हमें पता नहीं होता कि वो है कौन, स्पेसिफिक नहीं होता ना. सो द वर्ड इज वेरी इंडेफिनिट. उसमें बड़ा गैर मुय्यन किस्म का लफ्ज़ होता है. दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. So you have to write and learn these basic 5 kinds of pronoun. इससे एक्स्ट्रा भी आप अगर रीड करते हो, that is very helpful for you people. I have given example of each kind of pronoun while writing a sentence on the board. You have learned about pronouns. In the first sentence, you is personal pronoun. आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करना जरूर सीखना है, फिर साथ साथ आप यूज भी सीखेंगे. I myself do my homework. मैं भी जाते खुद अपना घर का काम करता हूँ. Myself is reflexive pronoun. तो देखो ना वो जोर सब्जेक्ट पर आ रहा है सारा. दिस इज माई पेन. ये करीब चीज जो होगी वो आपकी होगी, दूर होगी उसके लिए दैट आप कहोगे. दिस इज माई पेन. सो दिस और दैट, these two are demonstrative pronouns. Relative pronoun, it is they who are listening to my lecture. Yes, who. तो who relate कर रहे हैं two parts of sentence. It is they और second है are listening to my lecture. Indefinite pronoun, someone is knocking at the door. अब देखो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, डेफिनेटली कोई शख्स ही होगा. someone, तो हमें स्पेसिफिक पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है. तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा होता है कि एक वर्ड जो किसी के लिए स्टैंड तो कर रहा है लेकिन उसका हमें नुमाया पता नहीं होता. So that's called indefinite pronoun. In simple words, I have told you about pronoun and kind of pronoun. So please you have to revise them, you have to learn them, you have to identify what are pronouns in the sentence. These are 4 sentences of present tense in Urdu.
what you have to do, you have to translate these sentences into English. मैं अपना काम बाकायदगी से करता हूँ और वो सारा दिन क्रिकेट खेलता है। हम इन दिनों ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और तुम बस सो रहे हो। तुम इसमें ज़मीर सीख चुके हो और वो फिलहाल सीख चुका है। वो कई दिनों से अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा है। सो दीज सेंटेंसेस आर वेरी इजी। जस्ट आपका कंसेप्ट थोड़ा पॉलिश करने के लिए आई हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस, सो यू मस्ट ट्राई टू translate these sentences into English. They are very easy. Past tense, फेल माजी, when the action is past, जब काम हो चुका होता है, गुजर गया होता है, गुजरा हुआ ऐसा फेल माजी past tense कहलाता है। Like present tense, past tense have also four branches: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Please, one thing you have to note here, एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि कैपिटलाइजेशन जो मैं कर रहा हूँ वो ज़रूर कीजिएगा। आप कभी छोटा लेटर लिखा तो कभी बड़ा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस P I T, these three first letters are capitalized, ये बड़े लिखे गए हैं, तो आपने भी ऐसे लिखना है। क्लियर? हाँ, मार्कर यूज़ करें और उसकी हेडिंग आप बना दें, दैट लुक्स वेरी गुड। एंड स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखा करें, वो भी अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स सी, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी पास्ट में भी गुजरे हुए वक्त में भी जो भी आप काम करते हैं वो चार मुख्तलिफ अदवार से होकर गुजर कर होता है। तो आप देखते हैं कि आपके पास एक एक्शन चार मुख्तलिफ मराहल से होकर मुकम्मल होता है, ठीक है, और फिर वो पास्ट टेंस के जुमरे में चलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, the second form of verb is being used. I delivered you a lecture on present tense. You learned about noun in the previous lecture. तो जो काम हो चुका होता है, गुजर चुका होता है, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अभी इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में लेक्चर दिया, फिर आपको नाउन के बारे में पढ़ाया। सो डिलीवर्ड यू सेकंड फॉर्म, एंड आपने क्या किया, यू लर्नड अबाउट नाउन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं पढ़ा रहा था आपको, आप क्या कर रहे थे, यू आर लर्निंग प्रेजेंट टेंस, आप सीख रहे थे, तो वो कंटिन्यू टाइम था एट दैट टाइम। आई वॉज टीचिंग यू ग्रामर, और मैं उसको क्या कर रहा था, आई वॉज टीचिंग, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लर्निंग। सो लर्निंग प्रेजेंट टेंस, आई वॉज टीचिंग यू ग्रामर। पास्ट परफेक्ट टेंस, जब काम मुकम्मल हो चुका होता है, he had done his homework, they had completed their homework. So once you are done, जब एक्शन हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, had प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगेन had been. So we had been trying to learn English grammar for 2 weeks. We had been trying to learn English grammar for 2 weeks. तो हम 2 हफ्तों से अंग्रेजी ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे थे। सो जो भी वट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे थे माजी में कर रहे थे, और वो आपने देखा कि एन एक्शन, जो भी एक्शन होता है वो 4 मुख्तलिफ मरहल से गुजरता है, फिर वो तकमीलियत की तरफ आता है। Past indefinite tense second form, past continuous tense was plus infirm, past perfect tense had plus third form, past perfect continuous tense had been plus fourth form, also called infirm, और टाइम का इसमें कंसेप्ट है since और for।
My dear students, to learn tenses you have to revise again and again. So इनको बार बार दोहराना पड़ता है, फिर आपको tenses पर grip अच्छे तरीके से हासिल होती है. So again I have described the formulas of the tenses. हम positive sentences अभी सीख रहे हैं, negative और interrogative की तरफ नहीं है. Slightly changes आती हैं उसमें not का या फिर interrogation बनाने के लिए. Past indefinite tense subject plus second form plus object. Past continuous tense subject plus was were plus inform plus object. Present definite में था is or am plus inform इधर was were आ रहा है. Just helping verb जो है ना चेंज हो रही है. Past perfect tense had plus third form, उधर क्या था has had plus third form. Same had only. Past perfect continuous tense had been plus inform, उधर क्या था has been have been plus inform. सो जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स का ज़्यादा, मेन वर्ब्स तो सेम रह रही हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स आपकी चेंज हो रही हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हेल्पिंग वर्ब्स वो हैं जो मेन वर्ब्स की हेल्प के लिए यूज़ की जाती हैं. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. तो जो मेन वर्ब आपकी है वो तमाम ब्रांचेस में तकरीबन सेम ही यूज़ हो रही होती है. स्लाइडली चेंजेस होंगे इसमें. The last point of the lecture is reading English textbook. So yes, you have got English textbook now. So you are reading it. You have read the first two paragraphs, and now paragraph 3 that you are going to read. So please read the third paragraph from the textbook, tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. And what you have to do, you have to identify noun, pronoun and verb. तो आज 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने करके ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, जितने भी पैराग्राफ 3 में नाउन्स यूज हुए हैं वो आइडेंटिफाई करने, उनको लिखना है, प्रोनाउंस को, इसी तरह वर्ब्स को. तो पैटर्न किस तरह का आपका होगा, ये लिखें बर्ड्स एक तरफ, दूसरी तरफ क्लास कैटेगरी. तो नाउन प्रोनाउन वर्ब, सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आपने आइडेंटिफाई करने, बाकी नहीं आपने लिखने. क्लियर? आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल नाउ. अच्छा, अगर आपको ना पता चलता हो, कुछ बच्चों को नहीं पता चल रहा था, तो यू मस्ट कंसल्ट डिक्शनरी. अभी एक डिक्शनरी मस्ट खरीद लें सबकी. ये मैं चेक भी करूंगा कि सब लोग एक पिक्चर बनाकर मुझे सेंड करेंगे. डिक्शनरी कौन सी खरीदेंगे, इट्स इंटायरली अप टू यू. हर डिक्शनरी अच्छी होती है, आपको जो भी अवेलेबल है आप वो परचेज कर लें. इंग्लिश इनटू इंग्लिश करें या इंग्लिश इनटू उर्दू करें, दोनों ही बेहतर हैं. सो जस्ट यू हैव टू बाय अ डिक्शनरी नाउ एंड देन यू मस्ट कंसल्ट. इसके लिए आप जो है ना डिक्शनरी आपको यूज करना आनी चाहिए. डिक्शनरी कैसे आपने यूज करनी है, राइट? At the end of lecture there is always homework that you have to do, a fierce kind of competition again of homework, in the class or just out of class. So what you are going to write, you are going to write pronoun and kinds of pronoun. लेक्चर से आप नोट कर लें. यू मस्ट कंसल्ट यूर की बुक्स. ओके, होमवर्क के लिए वैसे मेरा लेक्चर ना सुना करें. जस्ट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जिस चीज़ की आपको सही तरीके से समझ नहीं चलती आप मेरे से पूछें. वैसे ग्रामर के लिए आपके पास मल्टी बुक्स होनी चाहिए एंड यू हैव टू कंसल्ट देम, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड देम. ग्रामर सीखने के लिए आपको कई बुक्स पढ़ना पड़ती हैं, फिर आपको इस पर जाकर ग्रिप हासिल होती है. ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश. मैंने 5 जुमले लिखे थे प्रेजेंट टेंस के, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. राइट अबाउट पास्ट टेंस. यस, तो पास्ट टेंस और उसकी 4 ब्रांचेस के फार्मूलाज वो आपने एक एक सेंटेंस के साथ लिखना है. जस्ट राइट 1 सेंटेंस. आप ऐसे लिखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर लिखें फार्मूला, फिर लिखें सेंटेंस उसका. 3 चीजें इनफ. Read the 4th paragraph and identify noun, pronoun and verb. तो आप read the 3rd paragraph and identify noun, pronoun and verb. ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बताया है. वर्ड्स लिखें एक तरफ लिखें क्लास ये कैटेगरी, तो फिर उसमें लिखें तरतीब से लिखते रहें. ठीक है,
ये मैं माइन्यूटली चेक करूंगा कि आप ये काम कैसे करें। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।